नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। जैसे कि आप सबको मालूम है, गुरुजी की असीम कृपा से हम लोग लाइट और डिविनिटी ग्रंथ के सत्संग हर दिन सुन पा रहे हैं महाराज की कृपा से। आपको बताना चाहता हूं कि बीच की कड़ी के 5-6 सत्संग के जो ऑथर्स हैं, जो सेवादार अंकल आंटियां हैं, कुछ केसेस में वो लोग अभी पढ़ने की स्थिति में नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। इसीलिए संगत जो सत्संग हैं इनकी श्रृंखला हम लोगों ने जो जो अवेलेबल है उसी आधार पर हम लोग गुरु जी की कृपा से सुनवा रहे हैं। आज का जो सत्संग है वो सत्संग लाइट और डिविनिटी ग्रंथ में सत्संग बाय ए डिवोटी के नाम से लिखा हुआ है। किसी को नहीं मालूम कि वो सत्संग किस संगत का है। अब क्योंकि महाराज ने वो सत्संग ब्लेस तो किया था, लेकिन हमें यह नहीं पता कि किस संगत का सत्संग है, तो हम महाराज की आज्ञा से किसी पुरानी संगत को बोला के वो सत्संग पढ़वा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो जो सत्संग बाय डिवोटी के नाम से होंगे वो हम वरिष्ठ गुरु जी महाराज के समय की संगत को से पढ़वाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज का जो सत्संग है वो रूपा सूद आंटी जी पढ़ेंगी और साथ में रेणु शर्मा आंटी जी उनका सहयोग देंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपा सूद आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू। रेणु आंटी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू रूपा आंटी। नमस्ते वासन अंकल। यू आर ऑडिबल आंटी। थैंक यू अंकल। आई विल स्टार्ट विद नमस्ते वासन अंकल। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना multilingual for granting me the seva of English reading of Light of Divinity. Om Namo Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namo Shivaya. Guruji Sada Sahai. Thank you multilingual Sevadar team for creating this platform which helps all the Sangat for sharing their experience in satsang. As Guruji says, सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। स्पेशल थैंक्स टू वासन अंकल, जिनको गुरुजी ने ये दिखाया और बोला उनको कि इसको आगे बढ़ाओ लाइट ऑफ डिविनिटी को और सारी दुनिया में, सारे संसार में, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग फैल सके। और वासन अंकल ने भी बड़ी डेडिकेशन और बड़ी सेवा के साथ इस ग्रंथ को प्रमोट करने की कोशिश की है, which I think he is very successful in doing it. Today, Light of Divinity is being read in many languages, as per our Guruji Mahimari is the coming generation. Since our Guruji never believed in any caste, creed, or language, or any religion, so why should anybody be deprived of his blessing? Guruji has his own way of blessing his Sangat. Today, I'm going to be reading page 59 from Light of Divinity, Satsang of a very old devotee, whose name is not there, but I will try and convey her full message to the Sangat. Guruji saves my marriage. I can never thank Guruji enough. We came to him laden with a business problem, and Guruji immediately gave us his sharan. Everything was going okay, but my biggest trial was ahead of me. I have been married for 35 years. I have a son and a daughter, both married, and our house has been blessed with a granddaughter. But it is said, no one ever gets everything. My husband's habits could take improvement. He likes to enjoy life, but does not want to take any family responsibility. And when he drinks, which is what really frightens me, he becomes violent and abusive. My children, thanks to Guruji, are a consolation.
I would come to Guruji and ask him for a child for my daughter. But my loving Guruji wanted to get my house cleaned first. Granting the boon of a child was no problem for him. One night I had gone home after taking Guruji's leave. My husband wasn't in, but I wasn't worried. He plays golf and comes home late at least 4 weekdays in a week. He is 62 years old, but has always liked to drink and eat with his friends. I alternated between being angry and loving, since I could never oppose him, for then he would start using his hands. I was very afraid of him. Usually, when he entered the house at night, I would pretend to be asleep to avoid an ugly scene. That night, I had just turned off the bedside lamp when I seemed to hear Guruji's voice. He said, "Find out where your man is." I turned on the light and called my husband on his mobile. Due to Guruji's grace, the mobile was on and I could hear him talking with a woman. I could hear everything my husband was with his mistress. I was stunned. Sangaji, this satsang reading is not just by coincidence. It's somewhat related to my life also, but not in such a ill-mannered way. Because Guruji had his own humorous way of blessing his sangat. Though my husband also was very fond of drinking, and when we went to Guruji for the first or the second time, he was sitting when we were waiting for Langar Prasad, and he was getting very impatient. So Guruji told him कि जाओ तुसी भी घर जाओ अपना पैग शेग लाओ, because he used to be very fond of drinking. And after that blessing, slowly his drinking started to fade away, and he turned into a man which I really wanted right from day one. So this was some Guruji's message only to me also. You see, like I was also blessed in the same way as Guruji wanted me to. And after reading this Light of Divinity, so many incidences and so many satsangs, when you read Light of Divinity, you find कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था. At that time, you don't realize कि आपके साथ क्या आपकी लाइफ में हो रहा है. लेकिन जब आप ये ग्रंथ पढ़ते हो और सत्संग पढ़ते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ हमारे साथ ये हुआ था और कब गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया इसके बारे में और कब हमें पता भी नहीं लगने दिया. यही गुरुजी की महिमा थी कि वो चुपचाप से अपनी ब्लेसिंग भी दे देते थे और संगत को पता भी नहीं लगता था कि क्या हो रहा है. So I think everybody should be reading this book and everybody should get their blessing. Is there anything else you would like me to describe on this? Auntie, Renu auntie? जय गुरु जी. जय गुरु जी आंटी. शुक्राना गुरु जी. सूद आंटी बहुत बहुत वेलकम और थैंक यू कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ. ਵਾਸਨਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ इस प्लेटफॉर्म से आए. आंटी मैं देखो इस पे एक कहना चाहती थी कि देखो 35 साल आंटी इतना सफर कर रही है, जुल्म सह रही है, घर का पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए और अपने व्यापार के लिए ही गुरु जी के पास जा रही है. क्योंकि गुरु जी भी कहते थे कि मैं ये आंटियां मेरे पैर पता क्यों घुटदियां ते मैं क्यों घुटवा लैंदा, क्योंकि आंटियां जड़ियां हमेशा अपने परिवार का ही चंगा चाहदियां. कि गुरु जी क्या करते थे. आज वो आंटी के सत्संग से देखो कैसे लग रहा है कि 35 साल वो जुल्म भी सह रही है, सब कुछ वो सहते हुए गुरु जी ने उसको कितनी ताकत दे रखी हुई है. क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरी एक संगत वहां पे है जो इतनी दुखी है. ताकत के साथ ही वो सारा सह रही है और उसके बाद उसके 2 बच्चे हैं. फिर वो बच्ची के लिए देखो गुरु जी से उसका भी कल्याण करवाने के लिए वो मांग रही है, गुरु जी इसको भी कुछ दे दो. पति के लिए भी व्यापार अच्छा मांग रही है.
जबकि पति अपनी होश हवास में उठते हुए भी बाहर जाके अपने परिवार को भूल के जिम्मेवारियां खत्म करके रंगरलियां मना रहा है। फिर भी वो देखो आंटी कैसे गुरुजी से प्रार्थना कर रही है कि इन सबका अच्छा हो। और जब गुरुजी ने उसे एक अंधेरे में छोटी सी रोशनी को दिखाया, एक आवाज लगाई, उठ जा आंटी, अपने पति को फोन कर ला, ਉਹਨੂੰ है भी किथे है, किथे घूमदा पिया। उसी आवाज से जब वो उठती है और फोन करती है तो वो कैसे हैरान रह जाती है कि जिस पति पर वो इतना विश्वास कर रही है कि वो ही पति एक और स्त्री से बात कर रहा है, और वो स्त्री जो उसकी प्रेमिका है, और फिर भी वो गुरुजी से कोई गिला शिकवा नहीं कर रही, हाथ जोड़ के खड़ी है। लेकिन उस दिन उसे जो गुस्सा आता है वो अपने मन में रख लेती है। गुस्सा तो बहुत आता है कि जब, और बड़े लोगों को इसमें जवाब सवाल में मिल रहे हैं कि गुरुजी कैसे कृपा कर रहे हैं, कैसे उसके विश्वास को पक्का कर रहे हैं, कैसे गुरुजी अपने चरणों में उसे बिठा रहे हैं, और कैसे वो अपने उन गुरुजी के चरणों में बैठी हुई है कि गुरुजी सारा कुछ अपने आप देख रहे हैं। क्योंकि वो नहीं मांग रही थी कुछ भी, वो सिर्फ व्यापार ही मांग रही थी, बच्चों के लिए मांग रही थी। लेकिन गुरुजी ने उसे दिखाना था, जिस पति से तू डर रही है, डर के सो रही है, वो आता है, मार कटाई करता है तेरे से, तुझे बहुत पीटता है, आज उसका एक असली रूप भी गुरुजी ने उसे दिखाया। कि आंटी गुरुजी हमेशा यही तो बोलते हैं कि औरत जब आती है मेरे पास वो परिवार के लिए पहले मांगती है, अपने लिए तो उसको फिक्र ही नहीं होती। और यही तो है, गुरुजी बहुत ही सिंपल और भोले भाले। और एक जैसे ही हम अंदर आते थे तो गुरुजी पढ़ लेते थे, उनको पता चल जाता था कि इसको चाहिए क्या और ये मांग क्या रही है। ए कमली देखो फिर अपने परिवार के लिए ही मांग रही, हाँ जी, चाहे वो खुद सफर कर रही हो किसी भी प्रॉब्लम से, कोई बीमारी किसी से जूझ प्रॉब्लम रही हो, से। लेकिन फिर भी वो पहले अपने फैमिली के लिए मांगती है। इसीलिए गुरुजी और देखो पहले कितना तभी बोलते हैं आत्मविश्वास कि औरतों को बनाते हैं पहले bless गुरुजी, करते जब आवाज लगाते हैं कि उठकर देख। हैं। वाकई हाँ में जब उसने देखा कि वाकई उसका पति बुराई में पड़ा हुआ है, जी। और उसकी बहू देखो कितनी अच्छी है। नहीं तो आजकल की बहू सुनती नहीं है, बाहर भी नहीं आती, लेकिन वो उसको भी गुरुजी ने पहले से ब्लेस किया हुआ है, तभी वो सुन रही है सारा कुछ जो वो सुनवा रही है, उसके साथ सुन रही है। अभी मैं हम कहते हैं हमें गुरुजी की रीस नहीं करनी चाहिए, हमें गुरुजी के कदमों पे चलना चाहिए, जैसे गुरुजी कहते हैं हमें वैसे ही चलना चाहिए, और अंत तक गुरुजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। मैं आंटी थोड़ा सा एक 2 मिनट का सत्संग कर सकती हूँ? हाँ जी आंटी जरूर करिए। मैं अमरकंटक गई थी, गुरुजी के टाइम में ही गई थी अमरकंटक। तो वहां नर्मदा शिवपुत्री है, वो नीचे से ऊपर बहती है। वहां गुरु शंकराचार्य आए हुए थे। तो उन्होंने एक सुनाया कि मेरे 2 चेले थे, दोनों मेरी रीस करते थे। तो एक दिन हम एक भक्त के घर गया, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने हमें अपनी जो दारू थी वो पिला दी, तो मैंने पी ली। उन्होंने क्या किया कि मैं बाहर आके बैठा, तो उन्होंने भर भर के पी, खूब नाचे गाए। उसके बाद कहते मैं एक लोहार के पास, जो तप रहा था लोहा, बहुत तपिश थी उस लोहे में की, और जैसे उसके टुकड़ों टुकड़ों को आग में डाला, वो हाथों में लिया तो मुंह में डाल लिया। तो वो जो चेले थे दोनों, तो वो घबरा गए, अब हम क्या करें, वो भागने लगे। तो गुरु ने आवाज लगाई, कहते बच्चे कभी भी गुरु की रीस नहीं करो, गुरु को सब पता होता है कि मैंने कब क्या करना है। गुरु पे एक विश्वास बना के हम चलते हैं, गुरु के ऊपर वो विश्वास को गुरु जी हमारे सारे अवगुणों को देखते हुए भी हमें अपने पास बुलाते हैं। ओगन मैं भरिया मैं फिर भी लोग कहें दरवेश, इतने ओगन हमारे अंदर हैं जो हमें भी दिखाई नहीं देते, मुझे भी नहीं दिखाई देते कई बार। लेकिन गुरुजी ने ऐसे ही चुन चुन के सबके ओगन दूर करके अपने चरणों में बिठा के हर एक को पहले हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, फिर एक शक्ति देखते हैं देखने के लिए कि अब देखो मेरी आवाज सुनो, मैं आ गया हूँ।
आज जैसे ही वासन अंकल है, मैं सुबह एक बात कर रही थी इनसे कि वासन अंकल, हमारी कोई औकात नहीं है, मेरी तो कोई औकात नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके भी कोई बात कर सकूं। गुरु जी खुद वो बात करवाते हैं, और वो खुद वासन अंकल को ही, बोलते हैं कि शर्मा आंटी को बुला लें कि वो, मैं उसे यहाँ ब्लेस फिर करूंगा। बार बार गुरु जी यहाँ जितने भी हम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, हम सबको गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। जी और आंटी। वो आंटी को तो गुरुजी देखो कितना ब्लेस किया, कितना उनका परिवार ठीक किया, और कितना उनके लिए गुरुजी ने सोचा और किया, और कैसे गुरुजी ने एक छोटी सी रोशनी उसने जलाई, और उस छोटी सी रोशनी में अनंतम रोशनी उसके घर में हुई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू आंटी। हाँ जी आंटी। Of course, I knew that he used to go to girls when he was young. When I voiced my suspicion, he would point out that he daren't take such a risk as AIDS was prevalent. Since my husband has always been conscious of his health and spoke with confidence, I had believed him. Like all ladies, she believed whatever her husband said. जो भी उनके husband ने बोला, वो उसी पे विश्वास करके उनकी हर बात मानती रही. So this affair was a big shock for me, but I kept my wits about me and summoned my daughter-in-law and let her listen to the conversation, for I knew I would need to confront my husband with proof, else he would just prevail over me with violence. My son was out of Delhi. Guruji, I'm sorry, but that day when he came back home, I hit him and turned him out. He was so drunk that he did not know what was happening. He was kept out of the house for 10 days and came back saying many times that he was sorry. He is a man with big ego. He never used to say sorry. देखो आंटी, किसी से आदमी से सॉरी बुलवाना जरा काफी मुश्किल होता है, वो सिर्फ गुरुजी करवा सकते हैं अपनी मेहर से। जब वो चाहते थे कि वो आए आंटी की लाइफ में वापस एक अच्छे इंसान बन के, तो ऐसा उन्होंने जाल रचाया कि वो उससे उनका पीना भी छूट गया और वो एक अच्छे आदमी बन के 10 दिन के बाद जैसे घर आए, सॉरी सॉरी भी उन्होंने करा। एंड दैट्स हाउ द लेडी ऑफ द हाउस, वो आंटी जिन्होंने सत्संग लिखा है, वो उन्हें माफ भी कर पाई और अपना घर ठीक ठाक चला पाए। 2 months after that incident, there was a sea change in my husband. He turned into a good man after making me suffer for 35 years. Today, the same man loves me a lot. He loves the children and his granddaughter. Nowadays, if he drinks a lot, he cries. He confesses that he is not a good man and has given me a lot of pain. With Guruji's grace, I have forgotten everything, and there is a deep love between me and my husband, as if we have just been newly married. May Guruji bless all the women of the world who suffer so much. I would like to tell everyone to come to Guruji's feet and be happy. He is God. I love my Guruji very much. तो ये सब गुरुजी की मेहर ही है, वो किस तरह से ब्लेसिंग देते हैं और किसको कहाँ पे घुमा फिरा के अपने घर में वापस लाना है, कहाँ ले जाना है, ये सब गुरुजी को ही पता है आंटी। और हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं कि गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के प्रे करें और उनसे अपनी ब्लेसिंग्स मांगे। एंड वो क्या देना चाहते हैं, किस रूप में वो ब्लेसिंग देते हैं, ये सब उन्हीं को मालूम। एक बार मैं इसी में लाइट ऑफ डिविनिटी में एक सत्संग पढ़ रही थी और फिर वो आंटी ने सत्संग सुनाया भी था प्लेटफॉर्म पे किसी पे, मुझे याद नहीं है। तो वो अपने अस्थमा के बारे में बता रहे थे और मुझे भी काफी टाइम पहले बहुत ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम थी और जब तक मैं न्यूबलाइजर पे भी रहती थी और कभी ऑक्सीजन लगानी या न्यूबलाइजर पे रहना या सारा दिन इनहेलर हाथ में रहता था, तो वो आंटी ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनका अस्थमा ठीक किया और उन्हें ब्लेस करा और उसके बाद उनको अस्थमा नहीं हुआ।
तो मुझे सडनली याद आया कि बहुत टाइम पहले मुझे भी बहुत ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम थी और नेबुलाइजर पे मैं रहती थी, लेकिन वो अस्थमा कब कहाँ चला गया मुझे भी नहीं मालूम। गुरुजी ने जब बुलाया और ऐसा ब्लेस किया, कब ब्लेस किया मुझे नहीं पता, तो मेरा वो अस्थमा भी निकल गया। एक सर्जरी होनी थी, वो भी गुरुजी के मेहर से टल गई और सर्जरी भी नहीं हुई। तो ये गुरुजी के अपने ही वेज हैं कि कैसे वो ब्लेस करना चाहते हैं, तो क्या देना चाहते हैं। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी आंटी। आंटी आप कुछ कहो, आप तो इतने पुराने जुड़े हुए तो हो गुरुजी के साथ, कोई देखो, गुरु जी को, गुरु जी सबसे पहले, जैसे पहले कहते थे ना कि गुरु जी एक्सरा करते हैं, आजकल गुरु जी एमआरआई करते हैं। अभी का मेरा सत्संग है, पीजीआई में गई तो मेरा अस्थमा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ी हुई थी, लीवर की भी और पथरी की भी, और बैक की सारी बढ़ी हुई थी, गैप वगैरह और डिस्क की। तो एचबी मेरा 6.8 था। तो ना मतलब ब्लड था, ना हड्डियां भी कमजोर थी, विटामिन डी सी सारी कमी थी। तो डॉक्टर कहने लगे मेरे हस्बैंड को, मैं भी साथ खड़ी, मेरे बेटा भी, हस्बैंड को कहते कि ये किसकी रिपोर्ट है? कहते मेरी वाइफ की है। कहते पेशेंट कहाँ है? कहते यही खड़ा है, यही है पेशेंट। तो कहते कौन है? कहती मैंने कहा मैं हूँ डॉक्टर साहब, मैं हूँ पेशेंट, मेरी ये रिपोर्ट्स हैं सारी। कहते आप कैसे आए हो? मैंने कहा मैं चल कर आई हूँ, लिफ्ट में चढ़ के आई हूँ, तो आगे चल के आई हूँ। तो कहते घर में कैसे रहती हूँ? मैंने कहा मैं सत्संग में जाती हूँ, चलती फिरती हूँ। मैंने कहा कोई मतलब सीरियस बीमारी है मुझे? कहते ये रिपोर्ट किसकी है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बता तो रही हूँ, मैं पेशेंट हूँ, मेरी रिपोर्ट है ये सारी। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा अब पता नहीं क्या निकल गया गुरु जी, मैंने ऐसे ही बोला जय गुरु जी। तो वो कहने आप गुरु जी को मानते हो? तो पीजी के डॉक्टर है, उन्होंने अपनी जेब में से ऐसे ही निकाला, कहते ये भी गुरु जी को, डोगरी वाले। मैं कहा हाँ जी इन्हीं को मानती हूँ। कह रहे आप शर्मा आंटी हो, रेनू शर्मा आंटी हो? तो मेरे बेटे की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, रेनू शर्मा आंटी हो। कहते पंजोर वाले? कहते मैं परसों ही सत्संग सुन रहा था मल्टीलिंगल पे आपका, तो ये आपकी रिपोर्टें हो सकती हैं जय गुरु जी, आपको तो दवाई की कोई जरूरत नहीं है। और उस वक्त मुझे 28 साल हो गए अपना ये शुगर को। गुरु जी ने 7 अमृति 2007 में बैठ के मुझे 7 अमृति दो दो करके मुझे अमृति दी। जब 4 अमृति मुझे इकट्ठी मिल गई तो मैंने कहा गुरु जी अब तो उल्टियां लग जाएंगी, अब क्या करूंगी मैं। मैंने वो अमृति धीरे धीरे खा के, और मैं बाहर देखूं कि बाहर कैसे जाऊंगी, बारिश बहुत तेज है। मैं इधर उधर देख रही थी कि वॉमिटिंग तो करनी ही पड़ेगी, इतनी खा रहा है, पहले लंगर खाया ही हूँ, फिर मैं इतनी अमृतियां खा रही हूँ, जो प्रसाद गुरु जी ने दिया खाती खाती जा रही हूँ। तो गुरु जी ने कहा पहले दो दी, फिर कहे मास्टरानी लै दो, फिर कहते शर्मा आंटी लै दो, फिर कहते मलोदिए तीन, फिर देखी मैं क्या लै भी ऐदा 7 बन गईਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, मैं देख रही हाँ गुरु जी ने अपने पेट ते इतने हाथ रखा, पूरा मेरा वो हजम हो गया। ਜਦੋਂ मैं मत्था टेक के जान लगी मैं कहा गुरु जी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी देर तक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ है भी ਭਿੱਜ जावांगे ਅਸੀਂ ਤਾਂ। गुरु जी के कोल जैसे ही बैठे हम, गुरु जी कहने लगे शर्मा आंटी जाओ अब चलो, और शुगर दी कोई भी दवाई नहीं खानी। जिस दिन खा ली मैं शुगर नु कुछ नहीं कर सका। आज 28 साल होने वाले हो गए हैं, मैंने वो कभी कोई दवाई नहीं खाई, किसी चीज की दवाई नहीं खाई। थायराइड की खाई थी, वो भी 4 साल पहले मैंने वो भी छोड़ दी, कोई दवाई नहीं मेरे पास होती। और जो भी बीमारी है, गुरु को पता होता है कि बीमारी ठीक करनी है, इसको धन देना है, क्या देना है, उन्हीं को पता होता है। मुझे कई, हम कई बार मांगते हैं तो नहीं मांगना चाहिए, पता नहीं होता हम क्या मांग रहे। गुरु के चरणों में हम गुरु की सेवा, गुरु को मांगते हैं तो गुरु अपने आप ही घर आके बैठते हैं। यहाँ आके तो गुरु जी हमेशा ही बैठती हैं, क्योंकि ये घर भी उन्होंने बनवाया। एक विश्वास था मेरे मन में, सबने विश्वास डामाडोल किया मेरे साथ, कई गुरु जी को छोड़ के गए पर नहीं, क्योंकि गुरु जी ने पहले केदारनाथ जाते हैं, फिर हम जाते हैं वहां पे बद्रीनाथ, लेकिन उल्टी यात्रा कराई हमारे से। मैंने कहा मैं केदारनाथ नहीं चढ़ पाऊंगी, मेरे सारे रिश्तेदार कहने लगे कि पहले बद्रीनाथ चलते हैं।
बद्रीनाथ में देखो गुरुजी मिलते हैं, गुरुजी ही चुनते हैं, जितनी संगत है सबको चुन के, जैसे ये आंटी का था, आंटी ने देखो कितनी अच्छी सब गुरुजी से हाथ जोड़ के मांगे कि गुरुजी जितनी भी लड़की हैं सबको आपने सब पर कृपा करनी है, कोई भी ऐसे भंवर में ना फंसे जैसे मैं फंसी हूँ। बहुत जवाब थे इनके सत्संग में, आंटी ने गुप्त रखा अपने आप को, और बहुत अच्छी बात है, वैसे गुप्त ही रखना चाहिए। अगर कोई सत्संग ऐसे है तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी हम तो आपसे रूठ गए, नहीं, गुरुजी से नहीं रूठना चाहिए। आप गुरुजी से बातें करते रहो, गुरुजी को उसका जवाब देना ही होता है, और गुरुजी ने कल्याण करना ही होता है, हर तरीके से करना होता है, हर तरीके से उन्होंने हमें देना ही होता है। मैं तो शबरी को देख रही थी, जब बचपन में सुनते थे कि छोटी सी थी तो उसको किसी ने कह दिया राम आएंगे, सच में राम आए। और जी ये एक विश्वास होता है, इस विश्वास को आगे तक हम सभी साध संगत को अपने हृदय में गुरु जी का ये विश्वास रखना चाहिए कि गुरु जी जो कहते हैं वो सपना नहीं है, वो सच में आकर कहते हैं। जी आंटी वो जी। आंटी को आवाज आई, कैसे उन्होंने लाइट दिलाई, एक आवाज आई गुरु जी की, उसने उन्हीं को मान के उठी वो। पर आंटी ये आवाज अगर जो आई और उस पे उन्होंने अमल किया, वो भी कहीं ना कहीं उनका गुरुजी से कनेक्शन था, तो वो आवाज को समझ पाए हाँ गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी, और उन्हीं को सुनाई दी, क्योंकि गुरु जी पहले से ही ब्लेस करते आ रहे हैं। जी। जब वो गुरु के दरबार में गई, गुरु जी ने तभी से ब्लेस करना शुरू कर दिया था। जो उन्होंने नहीं मांगा था वो भी गुरु जी ने देना शुरू कर दिया था उनको, ताकि उनका विश्वास और बढ़ता बढ़ता चला जाए। आज उनका देखो गुरु जी ने कैसे उनका घर ही स्वर्ग बना दिया, कि वो अंकल ने खुद माफी मांगी, जो कभी इतनी बुरा बिहेव कर रहे थे, आज उन्होंने हाथ जोड़ के अपनी वाइफ से माफी मांगी, वो गुरुजी ने मंगवाई, जी क्योंकि और कोई नहीं कर उन्होंने मतलब उनके अंदर ठोट डाला कि माफी मांगनी ही पड़ेगी अब तो तुझे, बहुत ऐश कर ली काका, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये गुरुजी ने ठोट डालते हैं, जी हमें भी आंटी। डालते हैं, हम गलतियां करते हैं कई बार, तो हमें भी कहते हैं गुरुजी आंटी ऐसे करो ऐसे करो, तो हम भी गुरुजी से हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोल के क्षमा मांगते हैं। आज भी मांग रही हूँ गुरुजी, ऊंचा ज्यादा बोला गया हो तो उसके लिए क्षमा। पर आज जो ये सत्संग है बहुत ही ब्लेस्ड आंटी का सत्संग था, जिस परिवार को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। सूर्य आंटी आपने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया हमें, और जो ये रीडिंग की बहुत ही अच्छी थी, मन को छू गई। शुक्राना गुरुजी आज का। जो गुरु जी का विश्वास है, मुझे लगता है कि सारी संगत को और ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने एक आंटी ने सभी बच्चों के लिए भी मांगा है कि गुरु जी सब बच्चों का, सब बेटियों का कल्याण करना, कोई भी बेटी चारे पासे सुख देना, कोई भी बेटी ने दुख ना देना। करे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी सर्वतम करुणा। वासन अंकल, आप भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दो। जय गुरु जी महाराज। महाराज के महाराज जो हैं वो उन्होंने आंटियों को जो आशीर्वाद दिया, जैसे आज की डेट में हम लोग कहते हैं नारी का सशक्तिकरण, है ना। तो महाराज के हाँ जी, टाइम से ही मतलब जो उन्होंने सबको ब्लेस कर दिया है, सबको उन्होंने प्रेरित कर दिया है। जी बस अंकल। बस महाराज की कृपा जो है सब पर बनी रहे। रूपा आंटी, आपने बहुत ही सशक्तिकरण से ये ये बड़ा चैलेंजिंग वाला टॉपिक था आज वाला, आपने इसको एक्सेप्ट किया पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो महाराज ने वो कृपा की आपके ऊपर कि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा आज, और संगत जी को काफी मैसेजेस मिले हैं, और थैंक्स अ लॉट। रेणु शर्मा आंटी जी, आप तो सागर हो, बस खजानों से भरपूर हो आप सारे। रेणु शर्मा आंटी का तो कहीं तो वो है ही नहीं ना मुकाबला के। ये तो इतना जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, कब से कितने पुराने संगत। जय गुरु जी। रेणु हाँ जी, शर्मा आंटी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।